Namaskar. Hi everyone. Welcome back to my channel. This is Pooja. Everyone. I hope you're doing fine. So let's start. Numerical value and which is accompanied by its respective unit. टाइप्स हैं. अब मेजरमेंट्स भी तो करनी आनी चाहिए भाई. ये नहीं है मीटर स्केल लिया और पहुंच गए यहाँ से चांद का डिस्टेंस नापने. कैसे करेंगे? सपोज ये मेरे पास एक पेन है. विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दी आईज. बहुत टाइम लग जाता है. Okay, so today we'll be talking about another topic which is units and measurements. तो किसी भी physical quantity को अगर आपने measure करना है तो how will you do this? You require a certain basic unit and the value of that physical quantity. तो इन दोनों को मिला के कि एक numerical value and which is accompanied by its respective unit. इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. तो यूनिट क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट. तो इन यूनिट्स के भी टू टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स. दीज कैन ईदर बी फंडामेंटल यूनिट्स और यू कैन से देम बेस यूनिट्स एंड Another one we have derived units. तो अब आप सोच रहे होंगे कि जितनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमें उतने ही ज़्यादा यूनिट्स चाहिए होंगे. बट द फैक्ट इज वी रिक्वायर ओनली सम फंडामेंटल और बेस यूनिट्स एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज सिंस दीज आर इंटररिलेटेड एंड the other quantities which are derived from these fundamental quantities. तो उनके units क्या होंगे? These will be derived units since those quantities can be derived from the fundamental quantities itself. And a complete set of these units इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? The system of units. So talking about the international system of units, first of all let us consider the most commonly used CGS, FPS and MKS. तो length, mass और time के जो units हैं इन सब systems में these are listed here. तो at present the internationally accepted system of units for measurement is the Système International des Units, which is the French for International System of Units, and it is abbreviated as SI. So this system of units was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971 for international usage in scientific, technical, commercial and industrial works. So SI system में you have 7 base or fundamental quantities which are listed somewhere. यहीं होंगी शायद इधरली साइड पे सब कुछ यहीं लिखा आएगा. Besides these 7 fundamental quantities, there are 2 other units. और before proceeding towards them, एक मैं point यहाँ पे रखना चाहूँगी. The mole that you can see here. इसके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि whenever you use this unit, you have to specify the entities for which the mole unit is being used. For example, these entities may be atoms, molecules, ions, electrons or a group of these. So whenever you use mole, the respective entities, they need to be mentioned. Okay, so now let us talk about 2 other units which are the units for plane angle and the solid angle. The plane angle, which is theta, is equal to the length of the arc divided by the radius r, and the unit for plane angle is radians. Another unit is the solid angle, which is omega, and the unit of the solid angle is the steradians. And it is to be noted here that both plane angle and the solid angle, these are dimensionless quantities. अच्छा जी, अब हमने units तो पढ़ लिए क्या हैं. अब measurements भी तो करनी आनी चाहिए. भाई units पता चल गया, पता है नहीं measure कैसे करना है, तो फिर ये ज्ञान किस काम का. फिर हमने वही बात करी थी ना, for the progress of science both the interplay of theory and experiments is essential. तो आगे प्रोग्रेस के लिए आपको क्या करना आना चाहिए? आपको इन चीज़ों को मेजर करना आना चाहिए. जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, द लेंथ, मास, टाइम, इन सब को मेजर करना आएगा तभी इन यूनिट्स का फ़ायदा है, वरना सिर्फ लिखित ज्ञान है
अच्छा, तो कुछ डायरेक्ट मेथड्स के बारे में आई होप इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट बी नोइंग कि आपने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा होगा. यू मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट द वर्नियर कैलिपर्स एंड अ स्फेरोमीटर. तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी लेंथ के लिए ये सब सूटेबल हैं. तो जिस रेंज ऑफ लेंथ के लिए सूटेबल हैं ये सब वो लिस्टेड हैं. एंड टू मेजर द लेंथ्स बियॉन्ड दीज रेंजेस वी हैव टू मेक यूज ऑफ सम इनडायरेक्ट मेथड्स. ये नहीं है मीटर स्केल लिया और पहुंच गए यहाँ से चांद का डिस्टेंस नापने, ऐसा नहीं करना, बहुत टाइम लगता है. ओके, सो वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस. किसी यहाँ से किसी दूर फार अवे प्लेनेट का आपने रेडियस या डायमीटर इवैल्यूएट करना है, मेजर करना है, तो फिर उस केस में हम वर्नियर कैलिपर्स लेके तो नहीं जा सकते या यहाँ से ऐसे ऐसे करके. उस केस में कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट बन जाता है? इट इज़ द पैरेलैक्स मेथड. ये क्या है? इसका एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं. कैसे करेंगे? सपोज ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है. अब इस पेन को मैंने इस डिस्टेंस पे रखा और मैं इसके टिप पे इधर इस पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी, अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है तो. वैसे है नहीं इतनी. सो आई विल बी क्लोजिंग माई राइट आई और यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर करूँगी टिप तक. ये डिस्टेंस जो है ये मेजर करूँगी. सिमिलरली आई विल बी क्लोजिंग माई लेफ्ट आई और राइट आई से मेरा जो इस टिप तक का डिस्टेंस है, ये डायगोनल डिस्टेंस जो है वो मैं मेजर करूँगी, ठीक है. और आई विल बी नोटिसिंग दैट पोजिशन ऑफ दिस टिप विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दी आइज़. कि मैं लेफ़्ट आई से करूँगी तो मुझे कुछ और पोजीशन दिख रही है, राइट आई से मुझे थोड़ी सी अलग दिखेगी. तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? दैट इज़ पैरेलैक्स. एंड एक टर्म है बेसिस. तो वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स फ्रॉम विच यू आर टेकिंग द मेजरमेंट. तो इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन माई टू आइज़. तो ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने इधर से एक मेजरमेंट ली, एक इधर से ली, तो बेसिस क्या हुआ? मेरी आइज़ के बीच का डिफरेंस. और एक डिस्टेंस हुआ कैपिटल डी. वो क्या हुआ कि जो मैंने मेजरमेंट्स ली अपनी लेफ़्ट और राइट आई से, वो कैपिटल डी होगा वो दो डिस्टेंसेस. तो अगर मेरी बेसिस की जो लेंथ है वो स्मॉल b है और जो डिस्टेंस मैंने मेजर किया वो कैपिटल D है, और एक कंडीशन है कि जो बेसिस है ये कम होना चाहिए जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं. द रेशियो ऑफ b एंड d शुड बी मच 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 लेस देन 1. तो उससे क्या होगा? थीटा स्मॉल हो जाएगा. थीटा क्या होगा? अभी तो यहाँ से मैंने ऐसे देखा और यहाँ से मैंने ऐसे देखा, तो एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करो और उन इमेजिनरी लाइंस के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ थीटा. तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं शो कर दूँगी. तो जो थीटा हो जाएगा दैट विल बी वेरी स्मॉल. तो ये जो आर्क ए बी दिख रही है, इन दैट केस वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट टू बी द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एंड इट्स वैल्यू इज़ b. और इसमें जो s दिख रहा है, s क्या होगा? जो पॉइंट है दैट इज़ s जिसको आप देख रहे हैं. तो थीटा आपका रेडियंस में है. तो एक्सप्रेशन होता क्या है? जब आप सर्कल के बारे में बात करते हैं तो जो थीटा है दैट इज़ l, जो कि लेंथ ऑफ द आर्क वो एंगल सबटेंड कर रहा है, डिवाइडेड बाय द रेडियस. तो उसी को यूज़ करके यू आर गेटिंग दिस थिंग. तो इस चीज़ को अगर आप यूज़ करें, यू कैन डिटर्मिन the distance d, and having determined d we can employ a similar method to determine the size and angular diameter of a planet. तो उस केस में अगर हम दूसरा तरीका बात करें कि अगर d जो है वो डायमीटर है प्लैनेट का और अल्फ़ा जो है वो एंगल है जो वो डायमीटर सबटेंड करता है एक पॉइंट पे जो कि अर्थ पे लाई कर रहा है, तो और उसी एक सिंगल पॉइंट से हम मेजर करेंगे डिस्टेंस ऑफ दोज टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. एक बार सपोज ये डायमीटर है तो एक यहाँ से लेंगे और दूसरी हम यहाँ से इस पॉइंट की मेजरमेंट लेंगे. तो हमें उससे क्या पता चल जाएगा? एंगल पता होगा कि जो हमारे एक पॉइंट से मेजरमेंट है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के लिए, उनके बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो अल्फ़ा है. एंड from these two values you can determine the diameter of the planet. तो इस तरह से इसके पैरेलैक्स मेथड को यूज़ किया जाता है.
अच्छा जी, ये हमने बात करी कि मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस ये कैसे होता है। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट्स ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, तो ये कैसे होगा? स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे? ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन आप वहाँ पैरेलैक्स मेथड नहीं लगा सकते या फिर से मीटर स्केल उठाया और पहुँच गए ऐसा भी नहीं करना, बिकॉज इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻10 मीटर इस तरह का अगर रेंज आपने मेजर करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हाथ ऊपर खड़े कर देंगे कि नहीं हो रहा? तो उस केस में आपको यूज़ करने पड़ेंगे अपने माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जांपल, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है दैट यूजेस विजिबल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। सिंस आपको पता है लाइट के भी वेव लाइक फीचर्स होते हैं, तो द रेजोल्यूशन to which an optical microscope can be used is the wavelength of light itself. तो visible light की क्या wavelength है, ये कहीं आ रही होगी यहाँ पे। तो optical microscope cannot resolve the particles which have size smaller than this. तो अब instead of visible light तो हम क्या कर सकते हैं? We can use electron beam. तो electron beam को हम focus कैसे कर सकते हैं? With properly designed electric and magnetic field से you can focus your electron beam. तो अब resolution जो है of the electron microscope ये भी limit हो जाएगी by the fact that electrons also can behave like waves. तो wavelength of an electron can be as small as a fraction of an angstrom. इसके अलावा एक टनलिंग माइक्रोस्कोपी भी है that has been developed in which the limit of resolution is better than an angstrom and it is possible to measure the size of molecules. तो ये कुछ तरीके हैं मेजर करने के आपकी छोटी छोटी लेंस को। कितनी खूबसूरती है इस साइंस में। नेचर नेचर नेचर, इस प्रकृति का भेद किसी ने नहीं जाना। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, बहुत ज़्यादा हो गया अब। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई नो इससे ज़्यादा आप वीडियो देखते नहीं हैं, इतनी ही देख ली होगी, बहुत बड़ी बात है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो and I'll be back with my next video. Till that time, all of you take really good care of yourselves.